VARC का प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट किया? व्हाट वर द की पॉइंट्स इन VARC? हाँ, रीडिंग करते थे कि नहीं करते थे बुक्स वगैरह, एंड व्हाट आर द सोर्सेस? So actually, I used to read novels during lockdown, but then I left reading it because of the lockdown. I had my semester exams of college started. But then when I started preparing for CAT, I used to read articles. But जब start करते थे ना, first paragraph, second paragraph, काफ़ी लंबे लंबे articles होते थे magazine के. So when I used to start reading the articles, first para पढ़ा, second पढ़ा, जब तक end में आते आते I wasn't able to connect कि पूरे article में क्या हो रहा है. So मेरे लिए वो lost cause था पूरा article पढ़ना. So I left the article thing and I started to focus on RCs, practice RCs. I used to solve them 3 RCs daily. I used to get them on Telegram groups. There were many groups online. So I used to get the RCs from their previous year mocks. Was a major source for RC practice for me. Okay, and then VA part? So as I started earlier for verbal, so I knew that my verbal was strong. I wasn't really worried about my verbal. I used to get questions on verbal in the groups itself. I used to solve them at night, like 5 to 6 verbal questions and 2 to 3 RCs per day, and that was enough for me. Okay, so any particular source for VARC? As I started pretty late in the July, so I first started following Shamana ma'am on Unacademy. बैठे उनकी सारी बेसिक वीडियो, आई कवर्ड हर बेसिक वीडियोस. वहाँ से बस मेरे को बेसिक की ज़रूरत थी क्योंकि उसके बाद सारा पेस खुद ही आ गया था RCs को करना. वहाँ पे एक टेक्निक होती है, एक स्ट्रैटेजी होती है वर्बल में सॉल्व करने की, स्किम एंड स्कैन. तुम्हें पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ना क्योंकि कैट एक 40 मिनट्स का एक सेक्शन मिल रहा है तुम्हें और 4 RC आ रहे हैं. अगर तुम पूरा आर्टिकल पढ़ने बैठोगे तुम्हें 10 to 12 मिनट्स लग जाएंगे. सो यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम. तो स्किम एंड स्कैन टेक्निक जो मैंने अनअकैडमी में सीखी एंड उसने काफ़ी हेल्प करा. तो बाय यूजिंग दैट टेक्निक आई वाज एबल टू सॉल्व RC in 7 to 8 minutes approx. Okay. And I used to have time when I used to start solving mocks. Especially in verbal section, I used to have time to solve verbal questions as well. तो ये जो टेक्निक सीखा ये मॉक्स में अप्लाई कर पाते थे? हाँ जी. That was great. Okay. And in reading, you didn't read any novels and all, nothing like that? So काफ़ी साल पहले पढ़ा था तो recently तो नहीं. Recently पढ़ा, fine. अच्छा, that's what VARC, okay. And VARC के almost कितने mocks and sections दिए होंगे roughly? So I gave a total of 20 mocks, full length. Sectional 10 sectionals of VARC. In the whole process? Yeah, only 10 sections. Because I started pretty late, so I had to focus on quants as well. So I was managing my time. तो उस हिसाब से मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था सेक्शनल लेने का. तो मेरे को लगा प्रैक्टिस करके ही वो चीज़ इम्प्रूव हो रही है. तो मैंने लास्ट में अक्टूबर में आके सेक्शनल्स देना शुरू किया था वर्बल के. बाकी मॉक्स तो चल ही रहे थे शुरू से. Another like एक और ये चीज़ डिफरेंट चीज़ है कि नॉट वेरी हाई नंबर ऑफ मॉक्स एंड सेक्शंस ही हैज गिवन स्पेशली इन VARC. ठीक है, मतलब एवरेज एडिक्वेट नंबर है. 20 मॉक्स 10 सेक्शनल टाइप है ना. एंड शी कुड जज व्हाट वर द इश्यूज एंड ऑल एंड शी गॉट 98.73 इन द कैट. ग्रेट, बहुत बढ़िया. आफ्टर VARC LRDA बताओ. LRDA कैसे, LRDA कैसा सेक्शन है जहाँ पे बहुत लोग डरते हैं. ठीक है, माई सेक्शन ऑल्सो. सो हाउ लाइक यू स्टार्टेड विद LRDA? कितने अप्रॉक्स सेट सॉल्व किए and how it like went through mocks and whole process of LRDA? So LRDA was a nightmare for me. I used to cry कि set solve क्यों नहीं हो रहा है. But then when during my second attempt काफ़ी टाइम लग रहा था सिर्फ लॉजिक को बिल्डअप करने में. तो आपकी क्लासेस पहले मैंने शुरू में लॉजिकल रीजनिंग 1 कोर्स आया था. आई स्टार्टेड वॉचिंग दैट लाइव. But I knew I wasn't able to solve that set. You used to give us 7 to 8 minutes to solve in the class. But that wasn't enough for me because I was just getting started. So I stopped watching the live classes. रात को मैं आपकी क्लास लेके बैठी, PDF डाउनलोड करके सेट पूरा देखा, रीड करा. I used to give myself a lot of time for particular sets, particular genre of sets. तो वो लॉजिक बिल्ड करने में शुरू में स्टार्टिंग 1-2 months it took me a lot of time. सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग में करने के. उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन शुरू किया था. तो वो लॉजिक काफ़ी इंपॉर्टेंट था जो सिर्फ ना ही LRDA सेक्शन बट वर्बल और काउंट्स में भी काफ़ी हेल्पफुल रहा. होता है.
तो लाइक LRDA में हमने तो ऑलमोस्ट क्लास में 400-500 सेट्स किए थे, सारे कर लिए थे. So yeah, classes के I solved all the sets including the booster advanced classes. Other than that, I solved previous year 2017 to 21 CAT question papers and mocks as well. ये आपका complete source था for LRDA. Yes. So LRDA what she did is around she used to follow my classes, so around 400-500 हमने sets क्लास में किए थे. I think approximately 500 तो हो गया होगा. हाँ, in class it was 500. तो almost we did 500 sets in the classes plus mocks के sets and plus previous year CAT paper. तो मिला के almost मेरे को लगता है कि 800-900 तो हो ही गया होगा. Yes sir, exactly. हो गया ना? हाँ जी. That's like so to solve that high number 800-900 सेट सॉल्व करने के लिए ना it takes a lot out of you actually, क्योंकि एक सेट में sometime you need to spend an hour also हो जाता होगा. So initially it used to take me 2 hours just to build up in one set. हो जाता है because and that's actually correct also because ना आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बिल्ड कर रहे हो, ठीक है, तो आपको ना क्वेश्चंस का पैटर्न समझ में आना चाहिए, सेट समझ में आना चाहिए. सो ऑल दैट थिंग विल टेक टाइम टू ग्रैब इनिशियली. फॉर एग्जांपल यू कैन कंपेयर दिस विद रनिंग आउटसाइड, ठीक है, जब आप दौड़ते हो, जब आप अपनी फिटनेस के लिए बाहर रन करने जाते हो, तो अगर मेरे को 2 किलोमीटर रन करना है तो मे बी समबडी कैन डू इट इन 10 मिनट्स या 5 मिनट्स, ओके, बट मुझे टाइम लग जाएगा मे बी हाफ एन आवर इनिशियली जस्ट बिकॉज कि मुझे अपनी फिटनेस बनानी है. ओके, सो यहाँ पे इट्स अबाउट माइंड फिटनेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल. तो स्पेंड टाइम गाइज, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस. LRDA में देख लिया, बहुत लोग करते हैं कि 10 मिनट ट्राई किया, हो गया, नहीं हुआ, सॉल्यूशन देख लेते हैं. तो 10 मिनट ट्राई करके सॉल्यूशन देखोगे तो फिर कैसे हो पाएगा? इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? क्योंकि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बिल्ड ही नहीं हुआ है. इट टेक्स टाइम. प्रॉब्लम सॉल्विंग एक स्किल है और कोई भी स्किल सीखने में टाइम लगता है, ठीक है. तो सीखो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यू नीड टू स्पेंड टाइम विद दिस सेट. ओके, वेरी गुड. तो ये आपका LRDA कंप्लीट सोर्सेज था. ओके, सो दैट वाज लॉट ऑफ इनसाइट अबाउट LRDA इन VARC. नाउ लेट्स कम टू क्वांट. पारुल बता क्वांट कैसे प्रिपेयर किया, क्योंकि क्वांट में एक बेसिक प्रॉब्लम भी है कि क्वांट हैज गॉट अ वेरी वास्ट सिलेबस, ठीक है. सो व्हाइल पीपल आर स्टडीइंग अलजेब्रा दे फॉरगेट अरिथमेटिक, they studying geometry they forget PNC and all these things. Okay, तो सबको कैसे साथ लेके चले, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, how do you manage such vast syllabus? Okay, so when I started preparing for CAT, I was in my final semester. Okay. So I had my exams of college. तो शुरू में मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ एक चैप्टर उठाया, not the whole CAT syllabus, but just one chapter of quants, because that was one of my weaker section. Okay. तो मैंने पहले ज्योमेट्री उठाया क्योंकि आई न्यू फ्रॉम माई प्रीवियस फेल्ड अटेम्प्ट कि ज्योमेट्री में काफ़ी सारी छोटी छोटी थ्योरम्स होती हैं जो एंड टाइम पे यू सीम टू फॉरगेट. तो मैंने पहले ज्योमेट्री उठाया, उसमें सारा अराउंड मार्च अप्रैल आई वर्कड ऑन ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन. आई मेड अ नोटबुक और उसको बार बार रिवाइज करा. और सिर्फ ज्योमेट्री में क्या होता है, और किसी भी कॉन के टॉपिक में क्लास में लाइव कर लोगे, इट्स नॉट इनफ. You have to have a good practice on quants. वो कमांड आएगा ही नहीं जब तक तुम खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे. Because क्लास के बाद क्या होता था कि सर शीट्स देते थे, बेसिक टू एडवांस, उस एक चैप्टर में 200 क्वेश्चंस होते थे. तो that was more than enough for me. तो वहाँ से सारा क्लियर भी हो जाता था और उस क्वेश्चंस के अंदर से भी छोटे छोटे पॉइंट्स निकलते थे जो मैं अपनी नोट में नोट डाउन कर लेती थी. Okay. सो ये हो गया ज्योमेट्री का. फिर मेरे आ गए थे कॉलेज एग्जाम. सो आई लेफ्ट माई कैट प्रिपरेशन एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड अगेन इन जुलाई. पहले मैंने सारा ज्योमेट्री और मेंसुरेशन रिवाइज करा बैठ के. उसके बाद आई स्टार्टेड विद अरिथमेटिक. जुलाई फुल मंथ एंड देन 15 days of August, 1.5 month टू अर्थमेटिक. एंड इट वाजंट लाइक कि मुझे पूरा अर्थमेटिक आ गया होगा, पर उसमें भी कुछ टॉपिक्स थे जो मुझे नहीं समझ आए थे. एंड आई न्यू कि अगर इसमें टाइम वेस्ट करने में लग गई तो बाकी के भी पूरा सिलेबस रहता और नवंबर में एग्जाम है, आई वुडंट बी एबल टू कंप्लीट द सिलेबस. तो मैंने वहाँ पे वो चीज़ कुछ टॉपिक छोड़ दिए, पर मुझे यह था कि मुझे बेसिक क्लियर थे उन टॉपिक. एडवांस में आई वाज हैविंग सम प्रॉब्लम, सो आई डिडंट वर्क ऑन. फिर अगस्त मिड से मैंने अलजेब्रा शुरू करा. अलजेब्रा पढ़ा अप अंटिल सितंबर एंड और अक्टूबर फर्स्ट वीक तक. माई होल ज्योमेट्री, अर्थमेटिक एंड अलजेब्रा वर्क कंप्लीट विद फुल रिविजन. बिकॉज शुरू में मैंने ये नहीं किया कि एक चैप्टर करके साइड रख दिया, साथ के साथ एक तो मॉक्स दे रही थी तो उसमें सारी रिवीजन होती जा रही थी कॉन्सेप्ट्स की. और फिर क्लासेस में भी काफ़ी सारी मिक्स्ड क्लासेस आती थी जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स दोबारा आते थे, तो उसमें भी सारी रिवीजन होती रहती थी. तो रिवीजन तो रहा.
फिर कुछ चैप्टर्स है जैसे परम्यूटेशन एंड प्रोबेबिलिटी, जो मेरा शुरू से ही वीक रहा है स्कूल के टाइम से ही, तो मुझे पता था कि मेरे को इनको भी बेसिक ही रखना है। एडवांस लेके गई तो मेरा वहाँ पे टाइम खराब होगा, और अगर एग्जाम में आया भी तो मुझे पता है कि अब जो टाइम बचा है इसमें अगर एडवांस पढ़ लिया तो भी मैं पेपर में जाके इससे नहीं क्रैक कर पाऊंगी, मुझे टाइम लगेगा जो मेरा वेस्ट हो जाएगा। तो मैंने उन चीज़ों को भी बेसिक रखा, कुछ टॉपिक्स जो छोटे छोटे रहते थे, और परम्यूटेशन एंड प्रोबेबिलिटी को, पर ऐसा था कि मैं पेपर में बेसिक सॉल्व कर पाऊंगी। तो मैंने ऐसे ही क्वांट्स को पूरा कवर किया। सेग्रीगेट कैसे किया? लाइक पीएनसी बेसिक पढ़ना है तो इसका सोर्स क्या था? खत्म हो गया। सर पीएनसी के लिए ना आपकी रोडा चैनल पे वो पूरी सीरीज है, हाँ जी, प्रोबेबिलिटी एंड आरसी की 25 लेसन्स कुछ है। तो रात को मैं लेके बैठ जाती थी उनको और फिर पढ़ने बैठती थी, 2-2 लेसन रोज करके महीने में आराम बेसिक टू एडवांस लेवल है। हाँ, 2-2 वीडियोस रोज करके, टाइम भी नहीं लगता था, हार्डली 40 मिनट्स लगते थे 2 वीडियोस करने में, और पता भी नहीं चलता था। जब पूरी लेके रात को बैठती थी मैं, तो नहीं पता चलता था कि 2 वीडियोस क्या ही होती है पूरी प्रिपरेशन, और बेसिक्स भी क्लियर हो रहे थे साथ में। और फिर जब एंड टाइम आया तो एडवांस लेवल थोड़ा पहुंचना पड़ता होगा कैट के पहले क्लोज आने के लिए। सो हाउ यू रीच दैट एडवांस लेवल? अपने प्रिपरेशन कैसे क्वांट में अपने प्रिपरेशन को बूस्ट दिया? सर जब अक्टूबर एंड हो गया तो नवंबर की स्टार्टिंग हो गई थी, आई न्यू कि मेरे को अब अपने मॉक्स को नंबर ऑफ मॉक्स मुझे डिक्रीज करने और मुझे प्रैक्टिस इंक्रीज करनी है। तो मैंने जितने भी मॉक्स दिए थे, रादर देन गिविंग न्यू मॉक्स, मैंने पुरानों को दोबारा उठा के एनालाइज किया, जो ऑलरेडी मैं एनालाइज कर चुकी थी। उनको शुरू से उठाया एक को, और रिपीटिंग द पॉइंट कि मैंने जब मॉक्स देने शुरू किया था मेरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ था, और कुछ क्वेश्चंस रहते थे जो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं करे थे मॉक्स में, जैसे अलजेब्रा के, तो उन चीज़ों को मैंने छोड़ा नहीं, मैं वापस दोबारा गई और फिर उन सबको दोबारा क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो वो एक जब मॉक्स देने बैठोगे तो एक काफ़ी अच्छा साउंड माइंड मिल जाता है कि एक्चुअल पेपर में कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो कैट के जब क्लोज पहुंचे तो क्लासेस करते थे उस समय, लाइक कैट के 1 मंथ बैक 2 मंथ बैक, कि बस मॉक्स प्रैक्टिस करते थे? सर एक्चुअली मैंने अक्टूबर एंड तक ही क्लासेस करी, उसके बाद से मैंने सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस किया, और दोबारा से मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाए थे, सॉल्व करने बैठती थी मैं उनको। सो यू आर इन हाई प्रैक्टिस? यस सर। तो वो भी किया था जो मैंने लास्ट में बूस्टर कोर्स वगैरह कराया था? सर यस, वो मैं रिकॉर्डिंग कर लेती थी रोज, थोड़ा 2x की स्पीड पे करके ना, जो क्वेश्चन जैसे आता है उस चीज़ को छोड़ दिया, पर जो नया कॉन्सेप्ट सर बता रहे हैं तो उस चीज़ को मैं बैठ के सॉल्व कर लिया। क्वेश्चंस ऐसे हो जाते थे काफी। मॉक्स में क्या था कि मॉक्स दे रहे हैं तो इस वाले यू कैन अप्लाई दोस कांसेप्ट्स, कौन ठीक चल रहा था मॉक्स में? एक्चुअली बूस्टर कोर्स में ही मुझे ये टेक्निक पता चली कि क्वेश्चंस को पेपर में कितनी इजीली सॉल्व कर सकते हो थ्रू ऑप्शंस, ऑप्शन एलिमिनेशन से। जैसे लॉग है तो हमें पूरा नहीं सॉल्व करना, रेंज में लाके कट जाता है। तो ये सारी चीजें बूस्टर में आके अक्टूबर में ही मुझे पता चली थी, अक्टूबर नवंबर में। तो उसने काफी ज्यादा टाइम सेव करा था कैट के एग्जाम में। And like how did you cope up with revision? रिवाइज करते थे? Like quant का बहुत वास्ट सिलेबस है, रिवाइज करने में इशू आती है। Actually, when I started with my preparation, I made a notebook as I told earlier. तो उसमें वो इतनी मोटी हो गई by the time I ended up my preparation. तो मुझे पता था कि ये पूरा इतना मोटा मैं रजिस्टर में नहीं रिवाइज कर पाऊंगी एक रात पहले। तो जब मैंने बूस्टर क्लासेस लेना शुरू करी तो मैंने दोबारा से एक रजिस्टर बनाया था, बहुत पतली नोटबुक थी, जिसमें usually what happens is when you take a 2-hour class of a basic concept, usually there is just 2 or 3 points जो तुम अपनी नोटबुक में नोट कर पाते हो। But when you are sitting in a booster class, वो एक क्लास में एटलीस्ट 15-20 पॉइंट्स होते थे, छोटे जो एक्चुअल पेपर में काफ़ी हेल्पफुल होते थे। और कई सारी थ्योरम थी ज्योमेट्री की जो मुझे पता भी नहीं थी, पर वो नई चीज़ें आ रही थी, वो बूस्टर में ही पता चली। हाँ, बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते थे और अलग अलग चैप्टर होते थे, ये नहीं कि सेम चैप्टर हम कर रहे हैं, मिक्स्ड प्रैक्टिस भी काफ़ी सारी हुई थी। ग्रेट, दैट इज अबाउट क्वांट। ठीक है, तो नाउ जब ये हो गया सारा वीआरसी, ये पूरा प्री प्रिपरेशन फेज था आपका, वो कब था टाइम जब आपको वर्बल में -2 मार्क्स आए थे? वो कब हुआ था? सो दैट वाज ऑन 15th November, अराउंड 15 days। दैट वाज माय लास्ट मॉक आई गेव ऑन कैट। हाँ, तो उसमें ओवरऑल माय परसेंटाइल वाज 36। आई वाज डिप्रेस्ड। वो जब वो मोमेंट आया मैंने अपना स्कोर देखा कि ये क्या हो गया। 15 नंबर के मार्क्स में 36 परसेंटाइल थे। 36 ओवरऑल। ओवरऑल। ओके, देन
तो फिर उसके बाद मेरे स्कोर बढ़ा नहीं था उस मॉक में, काफ़ी कम था। मैंने 2 दिन तो वर्बल कुछ हुआ नहीं क्योंकि माइनस में आ गया था। मुझे पता था कि अगर यहाँ पे गया तो कुछ बढ़ेगा नहीं, उल्टा डिक्रीज ही होगा वो ग्राफ जाके। तो मैंने 2 दिन वर्बल नहीं छुआ। मैंने LRDI के 2021 के वो 2 दिन बैठ के तीनों स्लॉट सॉल्व करे थे, तो थोड़ा LRDI मेरा उसमें आया था क्योंकि मैं उससे पहले सिर्फ क्वांट से सॉल्व कर रही थी। LRDI मैंने 1 हफ्ता छोड़ा था और वर्बल भी छोड़ा था क्योंकि मुझे ये था कि हाँ कि मैं वर्बल कर लूँगी पेपर में। पर जब स्कोर देखा इट वॉज -2, होश आ गए ठिकाने। Then again लगा होगा थोड़ा डिमोटिवेटेड at that time, कैसे again अब कैसे हो गए? Actually I remember at that time you uploaded a video on YouTube रोडा के अकाउंट से in which you said कि रोडा का अकाउंट, रोडा मेरा ही चैनल है, रोडा चैनल, yes, कि 10th भी एवरेज कर ली, 12th भी एवरेज कर ली, कॉमर्स ग्रेजुएशन भी एवरेज हो गई है। अब एक टाइम तो बनेगा ना जब तुम्हें कुछ टॉप का करना होगा। तो वो वीडियो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग थी उस पॉइंट पे। तो वहाँ पे फिर भी मैंने मॉक नहीं दिया क्योंकि अगर मैं मॉक देती तो मेरा स्कोर गिरता और वो एक डिमोटिवेटिंग हो जाता सिर्फ 5-6 दिन पहले। लास्ट के 15 डेज में ऐसे भी मैंने मना कर दिया था। आई टोल्ड दैट नो मॉक्स, 1 or 2 हार्डली मॉक्स यू कैन गिव, क्योंकि वो तो इतना आपको दैट डजंट ऐड सो मेनी वैल्यू, ओके, सो मच वैल्यू, ओके, बल्कि थोड़ा कमी आ जाए तो फिर इट्स लाइक और डिप्रेशन हो जाती है। सो इसलिए लास्ट के 15 डेज में वी शुडंट बी गिविंग मच ऑफ मॉक, एंड दैट्स अ ट्रू पॉइंट एक्चुअली। आई कीप ऑन यूजिंग दिस इन क्लास, स्पेशली फॉर दोज गाइस 10th भी एवरेज हो गया, 12th भी एवरेज हो गया, ग्रेजुएशन भी एवरेज हो गया, ग्रेजुएशन भी। तो अभी आपका MBA बचा हुआ है ना, तो इसको तो अच्छे से करो कम से कम, ठीक है। सो जस्ट ट्राई टू गेट सम गुड। अगर अपने MBA एज अ ड्रीम चूज किया है तो ट्राई टू हैव सम टॉप 20-30 कॉलेज इन दैट, ओके, कम से कम ये तो क्रैक करेंगे। एंड आई थिंक वे बेटर ही करेगी, शी गॉट 99.43, so she is targeting now top 10 एक्चुअली, ठीक है, तो दैट्स ग्रेट। तो सारे एग्जाम्स हो गए, सो सारे मॉक्स हो गए, आई मीन टू से। नाउ हियर कम्स अ D-Day, ओके। तो अब D-Day में लाइक अगेन इट्स लाइक अ वर्ल्ड कप फाइनल, ठीक है, सब कुछ कर लिया बट आज अच्छा करना है। तो कैसे फोकस मेंटेन रखें, कैसे पैनिक नहीं हुए, सो ऑल दोज थिंग्स हाउ डिड यू मैनेज ऑन D-Day? Okay sir, so before answering this I would just say one thing कि throughout my preparation I got to know that CAT is more than just your preparation. It's more about your confidence, तुम्हारा attitude कैसा है एग्जाम के towards। तो मोटा अगस्त सितंबर तक, ज़्यादा से ज़्यादा अक्टूबर तक तुम्हारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ तुम्हें पता है कि तुम्हें आता है, बस तुम्हें वो 2 घंटे बैठ के वो एग्ज़ाम में दिखाना है कि तुम्हें आता है एक्चुअली में पेपर। तो वही चीज़ थी क्योंकि मेरा एक्चुअली स्लॉट 1 था और सेंटर इट वाज अराउंड 1 hour अवे फ्रॉम माई होम। तो मेरे को अराउंड 5 AM घर से निकलना था, काफ़ी ठंड थी उस टाइम पे। तो मैं सेंटर पहुंची, मेरा माइंडसेट ये था कि कुछ भी हो पेपर निकल जाएगा। आई हैड नो प्लान बी कैट के अलावा। मुझे वो कॉन्फिडेंस अगर वो थोड़ा भी हो जाता ना कि मैं अगर वर्बल के वो -2 भी वो दिमाग में लाती तो मेरा वर्बल सेक्शन ही गिर जाता, क्योंकि सबसे पहला सेक्शन वर्बल होता है और जब तुम स्टार्ट कर रहे होते ना तो थोड़ी अनाउंसमेंट हो रही होती है पीछे से कि ये रोल नंबर नहीं आया, ऐसा कुछ। तो वहाँ पे थोड़ा फोकस हटता है वर्बल से। तो उस टाइम पे मैंने अपने कान बंद कर लिया और सीधा मैं वर्बल पे बैठी कि नॉर्मल जैसे मैं मॉक्स दे रही थी घर में बैठ के, या वो 3 hours से जो रोज डेली प्रैक्टिस कर रही थी, सेम स्ट्रैटेजी मैंने अप्लाई करी, सेम बैठा और मैंने नहीं देखा आसपास कौन क्या कैसे अपना पेपर अटेम्प्ट कर रहा है, कौन साथ में बैठा है। सिर्फ मैंने अपने पेपर कैंसिल हुआ अगर देखते हैं नहीं कि कौन क्या अपना पेपर, बच्चे बैठे होते हैं ना कि एकदम से शुरू हो गया तो सबके पेन पेपर लग जाते हैं। तो मैंने किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। मेरे को ये था कि क्योंकि एक वर्बल सेक्शन है जिसमें तुम कुछ नहीं बोल सकते इवन आफ्टर गिविंग द पेपर कि अच्छा गया या बुरा गया, वो तो आंसर की पे डिपेंड करे।